Good evening, everyone. Today our topic is the rheology. So, what do you mean by rheology? Rheo means flow, and logy means study. This is the branch of science we deal with to study the flow behavior of liquids. ठीक है? Types of fluid. How many types of fluids? Mainly is the two types of fluid. One is the Newtonian fluid, another the non-Newtonian fluid. One is the Newtonian fluid, and another is the non-Newtonian fluids. Newtonian fluid means these are those fluid whose viscosity do not change when apply the external force, like is the shaking. Okay, and non-Newtonian fluids means these are those fluids in which change the viscosity when apply the external force. This is the difference between Newtonian and non-Newtonian fluid. This fluid is the change the viscosity when apply the shear stress, but this is the do change the viscosity but do not change the viscosity. Types of the non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid is the two types. Non-Newtonian fluid is mainly is the three types. One is the plastic fluid. One is the plastic fluid. Another is the pseudoplastic fluid. Another is the pseudoplastic fluid. And next is the dilatant fluid. Dilatant fluid. Mainly the fluids. Non-Newtonian is the three types. One is the plastic. Next is the pseudoplastic. And next is the dilatant fluid. So, what is the plastic fluid? What is the plastic fluid? Yeah, flow. What is the plastic flow or fluid? For example, like is the suspension. We take is the flocculated suspension. We take is the flocculated suspension. Suspension means that is the biphasic dosage form which contain one is the solid particle, another the liquid particle. The solid particle is the uniformly distributed throughout the solution. Do not dissolve in the given liquid. Like for examples, when particles are connect to each other or floccules by the weak van der Waals forces, like the weak van der Waals forces. When apply the shear stress, F is the represent shear stress. When apply the shear stress, the particles connection between the two the particle try to move away from each other. The particle try to move away from each other, but do not break down the contact between the particles. This is the particle move or particle distance is increase between the particles, but do not break down the contact between the particles. It means the viscosity. It means the viscosity of liquid is high. When apply the again shear stress, when apply the again shear stress, it means to break down the contact between the particle, and particles behave like a individual. It means the decrease the viscosity of liquid, and that points is known as the yield value. This is the yield value. Yield value is represent that is the maximum amount of force required to break down contact between the particle, and particles are randomly movement in throughout the solution or increase the flow. इसमें फ्लो आपका इंक्रीज हो जाता है फ्लूइड के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसका रियोग्राम देखें कि हाउ टू मेक द रियोग्राम ऑफ द प्लास्टिक फ्लूइड. एक्स एक्सिस पे जो हम ले रहे हैं दिस इज द शियर स्ट्रेस. ये हम शियर स्ट्रेस ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे जो ले रहे हैं हम जी. जी इज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ शियर. दिस इज द रेट ऑफ शियर. रेट ऑफ शियर मींस दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ लिक्विड. व्हेन बिफोर अप्लाइंग द शियर स्ट्रेस द ग्राफ इज इन कर्व. जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्लो इंक्रीज होगा. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जो पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट था दैट इज ब्रेक डाउन. दैट इज द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द कांटेक्ट एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ लिक्विड्स. दैट इज द फॉलो द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा प्लॉटिंग लाइन. दिस वन इज दिस एक्स्ट्रा प्लॉटिंग लाइन इंटरसेक्ट यानी बाइसेक्ट करता है आपका एक्स एक्सिस पे. इसको हम बोलते हैं दिस इज द यील्ड वैल्यू.
This is the yield value. Okay. Next है pseudoplastic flow. Pseudoplastic fluid या flow. Pseudoplastic fluid में क्या होता है? We take the example is the like polymers, HPMC, hydroxypropyl methyl cellulose, CMC. ठीक है, this example HPMC, hydroxypropyl methyl cellulose and CMC, carboxy methyl cellulose, etc. और कोई भी आपका पॉलीमर है वो एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर, एड द HPMC और पॉलीमर इनटू द वाटर. ठीक है, दिस पॉलीमर, दिस वन इज द पॉलीमर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सॉल्ट गेट एब्जॉर्ब द वाटर. वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एंड देन स्वेल अप ऑफ द पॉलीमर स्वेल करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स को. इस तरीके से पॉलीमर जो है स्वेल अप करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके. When apply the external force like the shear stress, ठीक है, these molecules maximum absorb के बाद में to release the water molecules, and जो वाटर आपका डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो पॉलीमर्स होंगे अरेंज्ड होंगे अलाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. पॉलीमर अरेंज होंगे और उसकी वजह से जो आपकी विस्कोसिटी है लिक्विड की वो डिक्रीज होगी. इसमें क्या है? विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज है बिकॉज द पॉलीमर फर्स्ट गेट द एब्जॉर्ब द वाटर एंड गेट स्वेल अप, यानी वो एब्जॉर्ब करके स्वेल अप होता है, उस वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हुई. अगेन अप्लाई द शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो आपके पॉलीमर है अलाइंड द अरेंज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. इट मीन टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सिस्टम एंड इंक्रीज द फ्लो को इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, स्यूडो है जो आपका, इसको हम बोल सकते हैं शियर थिनिंग सिस्टम या शियर थिनिंग फिनोमिना, यानी ये आपकी विस्कोसिटी को क्या करता है? कम करता है. ठीक है, नेक्स्ट है डायलेटेंट फ्लूइड या डायलेटेंट फ्लो. डायलेटेंट फ्लो में क्या है? डी से याद रखना है. वी टेक द एग्जांपल ऑफ द डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. एग्जांपल दी डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होती है, द डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मींस द पार्टिकल्स बिहेव लाइक ए इंडिविजुअल और पार्टिकल्स सेटल डाउन और एग्रीगेट देमसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ अनदर पार्टिकल. जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी एक दूसरे से सेटल करेंगे एंड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप. ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप करते हैं. दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड दिस इज द डिफिकल्ट टू रिड्यूस फोर्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन. वी टेक द एग्जांपल ऑफ जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर, जिसके अंदर वाटर है और जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, दिस इज द सॉलिड पार्टिकल. व्हेन अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स यानी कि द शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स टू डिक्रीज द विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि इंक्रीज द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल के बीच में जो वॉइड स्पेस होगा वो इंक्रीज होगा और विस्कोसिटी उसकी वजह से डिक्रीज होगी. अगेन हम जब भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद में जो पार्टिकल्स जो है लूज द वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा एंड कन्वर्ट इट टू द हार्ड फॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड केक इस तरीके से फॉर्मेशन होगी. इट मींस विस्कोसिटी इज इंक्रीज क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? लॉस हो गया, खत्म हो गया सारा का सारा. ठीक है, तो उसका मतलब विस्कोसिटी उसकी बढ़ गई है. दैट इज द बोलते हैं डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जिसको हम दूसरा नाम देंगे जिससे स्यूडोप्लास्टिक को दिया था, इसको हम बोलेंगे शियर थिकनिंग सिस्टम. ये क्या है? शियर थिकनिंग सिस्टम. दिस इज द शियर थिकनिंग सिस्टम, यानी विस्कोसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो ये मेनली 3 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है. न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब है डू नॉट चेंज द विस्कोसिटी व्हेन अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, लाइक इज द दैट इज ओबे द न्यूटन लॉ. फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, डाइल्यूटेड सिरप्स है, डाइल्यूटेड कोलोइडल सॉल्यूशन है. डाइल्यूटेड जो किया हुआ वो है. सिरप अगर बोलेंगे वैसे तो नॉन न्यूटोनियन में आएगा, अगर डाइल्यूट कर रहे हो तो वो आपका न्यूटोनियन में आएगा. ठीक है, डाइल्यूट कोलोइडल को कर रहे हो दैट इज आल्सो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होगा. ठीक है, देन है आपका उसके बाद में जो थिक्सोट्रोपी. ठीक है, थिक्सोट्रोपी
और नेगेटिव थिक्सोट्रोपी और रियोफिक्सी दिस इज द 3 टाइप्स की अगेन है। जो थिक्सोट्रोपी है, नेगेटिव थिक्सोट्रोपी है और रियोफिक्सी है। थिक्सोट्रोपी का मतलब है कि ये जेल फिनोमिना है, ठीक है, जेल फिनोमिना है। व्हेन दी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स लाइक द सूडोप्लास्टिक, जब भी हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स तो सोल में कन्वर्ट होती है सॉल्यूशन फॉर्म में, विस्कोसिटी इज डिक्रीज, यानी जो उसके बीच में कांटेक्ट होगा वो आपका डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में मान लो उसकी विस्कोसिटी दी आपकी 100, तो वो देन होगी 60 और देन होगी आपकी 90, यानी उसका कांटेक्ट जो होगा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो 2 चीज है इसके अंदर, वन इज द अप्लाई shear stress, one is the apply shear stress in case of the rheology, another is the remove the shear stress, one is the apply shear stress, another is the remove the shear stress, ठीक है। when apply the shear stress that is the time independent, this is the time independent process, ठीक है। when apply the shear stress that is the time independent process, but remove the shear stress that is the time dependent process, this is the time dependent process, ठीक है। next है viscometer, next is the viscometer। तो what do you mean by viscometer? Viscometer is an instrument or a device that is measure the viscosity of any fluid की viscosity को measure करते हैं, उसको हम viscometer कहते हैं। mainly the 2 types of viscometer in rheology, one is the single point viscometer and another is the second है जो आपका वो होगा multi point viscometer। 2 टाइप्स का विस्कोमीटर होता है, वन इज द सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर, अनदर इज द मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। जो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है, दिस टाइप्स ऑफ द मेनली यूज्ड फॉर टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, जितने भी न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे उसकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और जो मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर है दैट इज मेजर द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन एज वेल एज द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को मेजर करता है, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल है इसमें, ठीक है। लाइक इज द सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर में कौन कौन से आते हैं? ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, फर्स्ट एग्जांपल है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ठीक है। और जो दूसरा एग्जांपल आता है वो आता है इसके अंदर आपका जो फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ठीक है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ये एग्जांपल आते हैं एक्सेट्रा। और जो आपका मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर है उसमें भी आपके एग्जांपल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ठीक है। और जो दूसरी टाइप्स है इसके अंदर कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर होती है। नेक्स्ट है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, नेक्स्ट इज द क्लेन विस्कोमीटर।